A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of the class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we already discussed few of the important principles of management which are developed by Henry Fayol. So in this video, we will start and revise the principle of management, that is an discipline, unity of command, unity of direction. Okay, and thereafter we will start the new principle of management, that is an difference between unity of command and unity of direction. Okay, so without creating delay, let we start the today's video. Is unity of command. So what is unity of command? According to this principle, a subordinate should receive order from one superior only and be accountable to that superior from whom he receives order. If a subordinate gets order from more than one superior, he will get confused and will not be able to judge whose order are to be executed first. Dual subordination creates confusion in the subordinate and conflict between the superior. So, in order to avoid confusion, conflicts, disharmony, the employee should receive order from one boss only. Fayol observed that if this principle is violated, authority will be undermined, discipline will be jeopardy, order will be disturbed and stability will be threatened. यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि एक सुपीरियर को, एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर जो मिलना चाहिए वो सिर्फ एक सुपीरियर से मिलना चाहिए, और वो एक सबॉर्डिनेट किसी एक ही सुपीरियर के लिए क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल भी होना चाहिए. अगर कोई सुपीरियर एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट से ऑर्डर रिसीव करता है, कोई सबॉर्डिनेट किसी एक से ज़्यादा सुपीरियर से वो ऑर्डर रिसीव करता है, तो सिचुएशन में वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसे ये नहीं कंफर्म हो पाएगा कि उसे किससे ऑर्डर लेना चाहिए, किसके लिए वो अकाउंटेबल है, किसके काम को वो पहले करे, किसके काम को बाद में करे. So it will create a lots of the confusion and he will get disturbed. So what are the positive effect of the unity of command? The positive effect of the unity of command is it provide the enterprise a disciplined, stable and orderly existence. It create harmonious relationship between superior and subordinate, and responsibility can be easily fixed. Whereas the adverse effect of violation, मतलब अगर हम जब ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करेंगे तो कौन कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं. नंबर 1, lack of discipline in the organization, authorities undermined, confusion in mind of employees, ego clash among the different superior, loyalty of employees will be divided. So these are the important point related to the unity of command. Now the next principle will be a unity of direction. So what is unity of direction? Fayol advocates one head, one plan, which means that there should be one plan for a group of achieving having similar objective. All related activities should be put under one group. There should be one plan of action for them and should be under the control of one manager. Moreover, the efforts of all the members of the organization must be directed towards a common goal. This will lead to better coordination and help in effective administration of the enterprise. If this principle is not followed, there will be unnecessary duplication of efforts and wastage of resources.
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्लियरली कहा गया है, फ्यू ने क्लियरली बताया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वन हेड वन प्लान का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी एक ग्रुप जो होना चाहिए वो किसी एक प्लान या किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करता रहना चाहिए। अगर किसी एक ग्रुप को हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि वो किसी भी काम को प्रॉपरली टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड नंबर 2, जो ग्रुप्स डिवाइड हो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं उनमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि कई सारे ग्रुप एक ही ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर रहे हैं। सारे ग्रुप्स को अलग अलग प्लान, अलग अलग ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए, और वो सारे ग्रुप्स के जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होने चाहिए, के लिए कैपेबल होनी चाहिए। सो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? यूनिटी ऑफ एक्शन टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, होता है। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो लोगों का डायरेक्शन क्लियर होता है। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ईजिली हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं। बट when we could not follow the unity of direction, in this situation we faced adverse effect of this, that is an wastage of efforts and resources, lack of coordination, difficulty in achieving organizational objectives. Without unity of direction, unity of action cannot be achieved. ये भी बात रही, unity of direction के बिना हम unity of action भी achieve नहीं कर सकते। So this is a unity of direction. So let's we discuss what is the difference between the unity of command and unity of direction. So unity of command and unity of direction में क्या difference है? So on the basis of the meaning, unity of command means subordinate should receive order and instruction from one boss, whereas the unity of direction says that one head one plan. And on the basis of the relation, you can see that on the basis of the relation, unity of command is related to the functioning of the personnel, whereas a unity of direction is related to the functioning of the department. कमांड जो है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो किसी पर्सनल, किसी एक इंडिविजुअल्स के फंक्शन की बात कर रहा है, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ग्रुप, एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबऑर्डिनेट। हर सबऑर्डिनेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसमें क्लैरिटी लाने के लिए यू हैव टू फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड। वेयर इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द साउंड, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जो कि साउंड हो, जिसमें कोई भी नॉइस, कन्फ्यूज़न, डिस्क्रिमिनेशन ना। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, सो यूनिटी ऑफ कमांड को अगर हम फॉलो करते हैं तो इट लीड्स टू बेटर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यूनिटी ऑफ कमांड से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या होता है, जो कंसर्न है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्मूथली रन करता है। सो यू कैन सी दैट देयर इज नो डाउट दे आर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट, दो एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज अ परक्यूजिट्स फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, प्री रिक्वेस्टिस्ट, नॉट ए परक्यूजिट्स, प्री रिक्वेस्टेड्स है, यानी पहले हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, फिर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जिसमें एक ऐसे ग्रुप्स हों जिसमें यूनिटी, हर ग्रुप को अलग अलग ग्रुप गोल मिला हो, और उसमें जो ग्रुप में जो पर्सन काम कर रहा है उसे एक ही सुपीरियर क्या होना चाहिए, ऑर्डर देते रहना चाहिए। ओके, सो this will be a unity of direction and the unity of command, and the different from, and we see that how it will be different from each other. So the next principle is subordination of individual interest to general interest. So what is this? According to Henry Fayol,
organizational interest should be given more priority as compared to individual interest of an employee. The business enterprise is superior to individual employee. The interest of an organization must supersede the interest of individual of employees. This principle calls for reconciliation of goals of individual with those of the organization. However, if reconciliation is not possible, then the general interest must supersede individual interest. It means that the selfish attitude of an individual should be surrendered if it affects the interest of the enterprises. So what is subordination of general interest to individual interest? So according to this principle, you know very well, हमें organizational structure interest को ज़्यादा priority देनी चाहिए as compared to individual interest. यानी अगर सिंपल सी बात है कि अगर दो इंटरेस्ट आ रहे हैं, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, तो दोनों में हमें सबऑर्डिनेट करना चाहिए एंड वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सो व्हाट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट? दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का कंसंट्रेशन होता है, उसको अचीव कर पाते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. If we could not follow this objective, so the adverse effect is non-attainment of organizational goal and priority of individual interest may lead to ego clashes. अगर हम individual interest को priority देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे ego को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है. The number 7th, remuneration of employees. Fuel is an option that the employees should get a fair remuneration so that the employees, the owner, find equal amount of satisfaction. This will create harmonious relationship in the enterprise and build up a workforce of contented employees. Consequently, the employees of the organization company would be smooth. Wages should be determined on the basis of the cost of living, prevailing wage rate, financial position of the concern, work, job assigned, minimum wage act of the government. So according to the remuneration of the employees principle, फ्यूल का ये ओपिनियन है, फ्यूल का ये कहना है कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा एक फेयर रेमुनरेशन मिलते रहना चाहिए ताकि वो जितना काम करे उस बेसिस पे उसे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता रहे. ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में तभी एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है जब हम उन्हें एक प्रॉपर रेमुनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड वेजेस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रिवेलिंग वेज रेट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, वर्क और जॉब असाइन, मिनिमम वेजेस. ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम किसी भी पर्सनस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के रेमुनरेशन को क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए. Next is what is a positive effect? That is an harmonious relationship between the workers and management. मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है. और स्प्रिट ऑफ द डेडिकेशन की स्प्रिट आती है, स्टेबिलिटी आता है ऑर्गेनाइजेशन में. और अगर इसको हम फॉलो नहीं करते तो एम्प्लॉयज़ में डीमोटिवेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन आता है, लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ होता है एंड मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट होता है. Next is centralization and decentralization. So what is the principle of centralization and decentralization? Centralization means concentration of authority at the top level. Decentralization means disposal of decision making authority to all the levels of the organization. According to Fuel, degree of centralization or decentralization depends upon the number of factors like size of business, ability of subordinate, experience of superiors. There should be a proper balance between centralization, that is, a concentration of authority, and decentralization, that is, a proper distribution of authority at all levels in the organization. So centralization and decentralization एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन
पहले तो ये समझना चाहिए व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन पावर को एक लेवल में ही कॉन्सेंट्रेट कर देना, लिमिट कर देना। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये प्रिंसिपल सिंपल सा कहता है कि हमें किसी भी कोई एक भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो सकता है ना कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकता है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, वर्क कल्चर और अदर फैक्टर्स को ध्यान में रख के उसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन लेना चाहिए। बेसिकली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं, और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सेंट्रलाइजेशन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट? बेटर एंड क्विक डिसीजन, decrease in workload of superior, increase in the encouragement to subordinate. And what are the adverse effect? Slow decision making and risk of misuse of authority. Okay, next principle will be a principle number 9, that is an scalar chain. What is a scalar chain? We will define the scalar chain as a chain of superior ranging from the ultimate authority to the lowest. यानी एक टॉप लेवल किस तरह से लोअर लेवल तक और लोअर लेवल किस तरह से टॉप लेवल तक अपनी बातें, अपना रिक्वेस्ट टॉप लेवल लोअर लेवल तक कैसे अपने ऑर्डर पहुंचा सकते हैं। इट मीन्स स्केलर चेन इज द चेन ऑफ अथॉरिटी relationship from the highest to the lowest. It is considered a chain of command. The principle suggests there should be a clear line of authority from top to bottom, linking all the manager at all levels. यानी स्केलर चेन कहता है एक ऐसा चेन ऑफ कमांड होना चाहिए जो पूरा क्लियर होना चाहिए, एक अथॉरिटी लाइन क्लियर होनी चाहिए टॉप टू बॉटम तक, जो सारे मैनेजर्स को एक दूसरे से जोड़े। एवरी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, मैसेज हैज़ टू पास थ्रू स्केलर चेन। हाँ, और अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन या मैसेज पास करना है तो हम उसे ईज़िली, आसानी से पास कर सकें स्केलर चेन के थ्रू। बट एट द टाइम ऑफ द अर्जेंसी, लेकिन अगर कोई अर्जेंसी आए, इमरजेंसी पीरियड, दिस पाथ कैन बी कट शॉर्ट एंड दिस शॉर्टकट इज टर्म्ड एज गैंग प्लैंक। और जब हमें इमरजेंसी पड़े तो हमको ज़रूरी नहीं कि वो स्केलर चेन हमें फॉलो करना है, हम शॉर्टकट तरीके से डायरेक्टली चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। बेसिकली गैंग प्लैंक परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट द सेम लेवल अथॉरिटी विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन। यानी अगर हमें इमीडिएटली सेल्स प्रोडक्शन मैनेजर को इमीडिएटली अगर सेल्समैन से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए उसे गैंग प्लैंक का यूज़ करना पड़ेगा। और इट इज़ मस्ट बी यूज एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी। क्यों? क्योंकि मान लो प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसे इमीडिएटली पता करना है कि हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन हमें उसका फीडबैक चाहिए सेल्समैन का कि कौन प्रोडक्ट में क्या नेसेसिटी चेंजेस किए जाने चाहिए। तो उसके लिए वो सेल्स मैनेजर को पहले इन्फॉर्मेशन, सेल्स मैनेजर सेल्स पर्सन को अपॉइंट करेगा, तो वो बहुत टाइम लेगा। तो सिचुएशन में वी कुड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सेल्स पर्सन। सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? फॉलो होता है ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन, बेटर रिलेशन बनता है, एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, क्विक सॉल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम का। और अगर हम इसको नहीं फॉलो करते हैं तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर हो जाता है, चेन ऑफ अथॉरिटी में क्लैरिटी नहीं रहता, और रिलेशनशिप में क्या हो जाता है, बिटरनेस आ जाती है, क्योंकि हम अपने क्लोज सुपीरियर को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर थिंग के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए, उसके साथ साथ हर पर्सन्स के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर मस्ट बी ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मतलब देयर मस्ट बी अ सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी एट इज प्रॉपर प्लेस। इट इंश्योर्ड प्रॉपर एंड फिक्स प्लेस फॉर वेरियस मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। And apart from this social order, there must be an appointed place for every employees, and every employee must be in his and her appointed place. It ensured proper and fixed place given for each employee in an organization. मतलब मटेरियल ऑर्डर ये कहता है कि हर थिंग को का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए,
नॉन लिविंग थिंग्स का, मटेरियल का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, अब वो चीज़ें वहीं रहनी ही चाहिए। सोशल ऑर्डर कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर काम करते हैं, जिनको हम अपॉइंट करते हैं, उनके लिए प्रॉपर एक पहले से प्लेस हमें या केबिन बना देना चाहिए, ताकि हमें उनको दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग मटेरियल और पर्सन, ताकि हम उस पर्सनस को या मटेरियल को विद इन अ टाइम सर्च कर सकें। सो व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, हम मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नो लॉस ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज इन आवर ऑफ नीड, हमें उन चीज़ों को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिसिप्लिन क्रिएट रहता है। एंड इफ़ वी कुड नॉट फॉलो सच टाइप ऑफ द प्रिंसिपल, सो पॉसिबिलिटी होती है एक्सीडेंट की, रिसोर्सेज मिसयूज़ हो सकते हैं एंड टाइम का वेस्टेज होता है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल विल बी so the next principle is principle of equity. This is an 11th principle of management. And what is an equity? Equity refers to kind, just, and fair treatment to employees. It implies that managers should be impartial while dealing with the subordinates. Employees must be treated kindly, and justice must be enacted if loyalty and devotion is expected from them. They should not discriminate with respect to age, caste, sex, etc. Equity promotes a friendly atmosphere between superior and subordinate and motivates them to perform their duties efficiently. But equity does not mean total absence of harshness. Fuel was of the opinion that at times force and harshness might become necessary for the sake of equity. The principle of equity should be followed and applicable at every level of management. So what is principle of equity? हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के थ्रू ये बताना चाहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर, सबॉर्डिनेट और जो कई सारे वर्कर्स वर्क करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, अगर इक्वलिटी हो, किसी भी पर्सन्स को, किसी भी एम्प्लॉयज़ को उनके एज, कास्ट, रिलीजन, कलर, रीजन, बिलीव्स, उनके जेंडर, उनका जो कह सकते हो ओपिनियन है, उसके बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्क्रिमिनेशन का जो भाव है, जो फीलिंग्स है, वो डेवलप होती है। ओके, सो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? द फर्स्ट वन इज अ क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्डियल रिलेशन। नंबर सेकेंड, मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में मोटिवेशन आता है। वहीं अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लेबर टर्नओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जल्दी जॉब छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो यहाँ ज़्यादा देर, ज़्यादा टाइम के लिए वर्क नहीं कर सकते। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ के मन में डिससेटिस्फैक्शन की भावना आती है। अनहेल्दी सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ओके, द नेक्स्ट 11th principle of equity, that is an stability of tenure of personnel. So according to this principle, employee should be provided stability and continuity of their tenure of employment. There should neither be frequent termination of employees, nor they should be transferred frequently from one job position to another. Fuel was of view that the employees should be selected and appointed after due and systematic procedure. Once selected, they should be kept at their position for a minimum period and must be given reasonable time to show results. Frequent changes of personnel may not be good for the organization.
However, such changes should be made only when it seems unavoidable, as in case of prolonged illness, retirement or death of an employee. यानी ये जो और प्रिंसिपल है दैट इज इन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसमें क्या है, इस बात पे फेवर किया गया है कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए हैं, उससे काम करवा रहे हैं, तो उससे स्टेबिलिटी का क्या देना चाहिए, फीलिंग डेवलप करानी चाहिए, उसे कॉन्टीन्यूटी की फीलिंग डेवलप करानी चाहिए, उसे ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली हम टर्मिनेट कर दें या फिर उसे एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन में क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। सो हमें एक एम्प्लॉइज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर जॉब पोजीशन देनी चाहिए और उसे उसका टैलेंट या फिर उसका जो रिज़ल्ट है उसे शो करने के लिए रीज़नेबल टाइम भी देना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ में, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉइज़ हों चाहे वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ हो, अगर उनको हम वो सफिशिएंट टाइम नहीं देते हैं तो वो पहले तो इस टेंशन में रहते हैं कि उनकी जॉब फिक्स नहीं है, अगर वो गलत रिजल्ट देंगे या उनका डिसीज़न कहीं उल्टा पड़ गया तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है, तो दे विल नॉट फीलिंग सिक्योर इन दिस सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द फ्यूल उन्हें हमें क्या देना चाहिए, एक प्रॉपर सुटेबल वर्किंग कंडीशन देना चाहिए। तो what are the positive effect? First, optimum utilization of resources. Second, improves efficiency level of employees. And what are the adverse effect? That is in wastage of time and resources and dissatisfaction among employees. Let's we move to the principle number 13. Principle number 13 is very important. That is in principle of initiative. Initiative का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इनिशिएट करना, उनको मोटिवेट करना, अगर वो अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उस कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना, ना कि उनको डीमोटिवेट करना या उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको इग्नोर करना। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव implies chalking out the plan and then implementing the same. According to this principle, the successful management provides an opportunity to its employee to suggest their new ideas, experience, and more convenient method of work. The employees who have been working on a specific job sing long discover new and better techniques of work. It will be more useful if a platform to do so is provided to employees. Fuel was of opinion that management should provide an opportunity to its employees to just suggest ideas, experience and new methods of work. ओके, जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का कहने का मतलब होता है कि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट वही है जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देता हो कि वो अपने आइडियाज़ रखें, एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है, अपने हिसाब से काम करें। सो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप एमंग वर्कर्स एंड मैनेजर. Workers get motivated. And what are the adverse effect when we not follow the principle of initiative? First, demotivation among employees and an atmosphere of non-cooperation. लोगों के अंदर non-cooperation का क्या आता है, फीलिंग डेवलपमेंट होती है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट द प्रिंसिपल नंबर 14, दैट इज एन स्प्रिट द कॉर्प्स। ये एक फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ का मतलब होता है स्प्रिट द कॉर्प्स मीन्स टीम स्प्रिट, harmony in work groups and mutual understanding among all the members. Managers should infuse the spirit of teamwork among the employees in order to achieve the best possible results. Fuel caution the managers against dividing the employees into separate groups as it might damage the morale of the employees and overall interest of the organization in long run. This will inspire the workers to work harder for achieving the goals of the organization. It means split the crops. Following steps should be taken: proper coordination of workers at all level, development of informal relationship among workers must be encouraged. Employees should be made aware of that whatever they are doing as of a great importance to the business and society. बहुत ही सिंपल है स्प्लिट द क्रॉप्स और इसका मतलब होता है टीम वर्क करना।
इसको लेकर एक बहुत ही फेमस गाना है, मैं और तुम अगर हम हो जाते। सो मैं मीन्स आई, तो मतलब यू, यानी हमें आई एंड यू का जो फीलिंग है उसको हटा के वी का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो एक मैनेजमेंट का, एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोई काम करने पे ये नहीं कहना है कि मैंने किया या तुमने किया, हमने किया। इस तरह के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम की जो भावना है, फीलिंग है, वो डेवलप हो और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सारे लेवल्स पे। इनफॉर्मल रिलेशन भी डेवलप हो फॉर्मल के साथ साथ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। और लोगों को पता चले कि वो जो भी काम कर रहे हैं उससे उनको, उनके बिजनेस को और उनकी सोसाइटी को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। और अगर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, सो द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द क्रॉप्स, दैट इज़ एन डेवलप टीम स्पिरिट, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। एंड अगर हम ये चीज़ नहीं फॉलो करेंगे, दैट इज स्पिरिट द क्रॉप्स प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी हैव टू रिप्लेस द आई एंड यू कॉन्सेप्ट विथ वी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेंगे, दैट इज़ ए नो टीम स्पिरिट, ग्रुप गोल मे नॉट बी अचीव्ड। ओके, सो हम लोगों ने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। So in today's video we discussed a lots of the principle of management जो हमें इस बात को गाइड करता है कि हमें किस एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।